सपने वो नहीं होते हैं जो सोते वक्त हम देखते हैं, सपने वो होते हैं जो दरअसल हमें सोने नहीं देते हैं। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे कलाम की इन पंक्तियों के साथ नमस्कार, मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ। और एक सपना डिजिटल एजुकेशन में अग्रणी कंपनी एक्स्ट्रा मार्क्स और न्यूज नेशन ने भी देखा, सपना देश को अगला कलाम देने का। और इसी सपने के साथ हमने एक खोज शुरू की थी फाइंडिंग कलाम के जरिए, और ये खोज आज अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है, जहां आज हमारे पास फाइनलिस्ट हैं। हम उनका तारुफ आपसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि दरअसल ये जर्नी रही कैसी, किस तरीके से हम देश के कोने कोने से उन हीरो को चुनकर आपके सामने लेकर आए। तो आइए जानते हैं इस जर्नी के बारे में निहारिका से। Very warm welcome to the first student-centered reality show, the first of its kind in Indian television history, Finding Kalam. We had more than 2,000 contestants for level 1, out of which only 8 students were able to qualify for the mega finale round. Finding Kalam is sponsored by Extra Marks Education, India's only total learning digital solution provider. Founded in 2007, Extra Marks is leading the education technology sector across the world. The company provides 360-degree education support to learners through new age digital solutions. These solutions are used by schools in classroom teaching to make teaching learning process easy and effective. Students are also benefited by access to these solutions at home to enable self-learning. Keeping in pace with globalization in technology, Extra Marks empowers young learners to step with the latest technology and have anytime, anywhere access to quality learning. More than 8,000 schools use total learning digital solutions of Extra Marks across India, Singapore, Kuwait, UAE, Qatar and South Africa. Chairman of Extra Marks Education, Mr. Atul Kulshresht, under whose aegis Finding Kalam was materialized, is a successful entrepreneur and a reputed chartered accountant. He harbored a firm conviction that quality education is an absolute must for every child across globe. In a zest to make education interesting, effective, engaging and accessible to masses, it has been constantly infusing technology into education. Finding Kalam is his dream to give platform and recognition to talented and meritorious students who need to be the transformers of the society. The essence of his endeavor is perhaps evident in the name only. Through Finding Kalam, he wishes to inspire children to model themselves in the footsteps of our erstwhile president, a scientist, a philosopher, visionary, an educationist, and above all, a patriot who championed the welfare of his people. The name Kalam is symbolic of conviction, hard work, intelligence, talent, simplicity, determination, compassion, patriotism, and so much more. To emerge as a winner, you have to prove yourself, your vision, your ideas, your outlook. Your Kalam quotient will be measured on the basis of your knowledge, views, intelligence, and your zest to excel in your ambition, impact your country and society. You have to prove your acumen, not just by being intelligent, but by being wise, not just with your talent, but with your perseverance, not just with your passion, but by your commitment. आप में शक्ति और सामर्थ्य के साथ सच्चाई और सहनशीलता भी होनी चाहिए, विज्ञान के साथ विद्वता भी, कला के साथ क्षमता भी, धैर्य के साथ दृढ़ता भी, गुणों के सामंजस्य के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा भी और नवीनता के साथ नैतिकता भी. Your quest for knowledge will take you far, but your knack for finding solutions will make you victorious. I hope you are well prepared for this journey. So let's go ahead for rounds to Akshay. थैंक यू निहारिका जी। तो ये सारी क्वालिटी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, और मैं हमेशा कहता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसा पूरी दुनिया में युगों में कोई एक पैदा होता है, और हम खुशनसीब होंगे कि अगर उनका एक अंश भी हम खोज पाने में कामयाब हैं। हमने कोशिश पूरी की है, और कौन से हीरे आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जिन्होंने असफलता को पटखनी दी है दंगल में और जीत कर यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराता हूँ तेजस से, जो कि है केरला से। तेजस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तेजस के बाद आपकी मुलाकात सौम्या से, जो कि है राजस्थान से। सौम्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है फाइंडिंग कलाम के ग्रैंड फिनाले में।
हटे कटे लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट सीमा गगड़ा फ्रॉम गुजरात। At the last but not the least, Mitanshi from हरियाणा। तो ये है हमारे फाइनलिस्ट सीनियर कैटेगरी में, जिन्हें जज करेंगे हमारे दो जजेस। आपकी मुलाकात में हमारे जजेस से भी कराता हूं। सबसे पहले पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, जो कि सोशल रिफॉर्मर है एंड फाउंडर सुलभ, जो कि एक योद्धा की तरह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सपने में यानी स्वच्छ भारत अभियान में एक बहुत बड़ा किरदार सर आपका भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। साथ ही साथ जब हमारे पास भावी साइंटिस्ट हो सकते हैं, ऐसे लोग जिन्हें हर कसौटी पर परखा जाना है, तो उन्हें परखने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद सी रानाडे, जो कि स्पेस साइंटिस्ट हैं एंड एस्ट्रोनॉमर है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जब जजेस तैयार हैं, स्टूडेंट्स तैयार हैं, हम भी तैयार हो जाते हैं और सबसे पहले जाते हैं निहारिका के पास और जानते हैं कि पहले राउंड में आखिर क्या कुछ नियम है। निहारिका, Rules for round 1. Each participant will be asked 2 direct questions. In case he or she is unable to answer, it will be passed to next participant. Each direct question will carry 10 marks and a past question will carry 8, 6, 4 bonus marks for first, second and third pass respectively. 15 seconds time will be given for a direct question and 5 seconds time will be given for a past question. so let's start the first round with Tejas. Tejas, आपका पहला सवाल, name the 3 Indian states which have been declared open defecation free. तेजस आपका समय भाग रहा है, दिमाग भी भगाइए। ओह, टाइम इज ओवर। अब आपका क्वेश्चन पास होता है, आपके पास सौम्या। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। आई एम सॉरी, आपका आंसर पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, इस वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो अब सीमा के पास चला जाता है। सीमा, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। आई एम सो सॉरी, आपका भी जवाब सही नहीं है पूरी तरीके से। सो ये क्वेश्चन हमारी आखिरी पार्टिसिपेंट के पास जाता है, मितांशी। केरला, कर्नाटका एंड ओडिशा। आई एम सो सॉरी, आप सभी ने कोशिश की लेकिन आप लोगों की कोशिश पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि केरला सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ये 3 स्टेट हैं जिसके बारे में बिंदेश्वर सर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन तेजस आप मिस कर चुके हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है वो सौम्या आपसे होगा। आप रेडी हैं? India's first and longest bicycle highway was inaugurated in India. Which 2 places does this highway connect? बॉम्बे टू पुणे। Time's up. आपका जवाब गलत है। इसका ये मतलब होता है अगर सौम्या ने गलत जवाब दिया है तो ये क्वेश्चन आप पास हो जाएगा सीमा के पास। सीमा पास, सीमा ने भी पास कर दिया। मितांशी, अगर आपके पास जवाब है तो आप बिना इंतजार के वो जवाब दीजिए। दिल्ली एंड लखनऊ। ओ बहुत करीब थे आप, बट आपका जवाब गलत है। इसलिए तेजस आपके पास फिर से मौका है कि आप सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। टाइम्स अप। हाल ही में इटावा से आगरा को जोड़ते हुए एक साइकिल पथ, हम कह सकते हैं जोड़ता हुआ साइकिल पथ तैयार किया गया है, जहां पर आप साइकिल चला सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं और ताजमहल के भी दीदार कर सकते हैं अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो। कोई बात नहीं, हम अगले पार्टिसिपेंट की ओर जाते हैं। सीमा, अगला सवाल आपसे होगा। आपका सवाल है, इंदौर पटना एक्सप्रेस derailed on 20th November 2016, resulting in death of over 120 people. Name the place where this train derailed. इंदौर पटना एक्सप्रेस 20 नवंबर 2016 को डीरेल हो गई थी, जिसमें 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। आपको वो जगह बतानी है जहां ये ट्रेन डीरेल हुई थी। टाइम्स अप। यानी अब ये क्वेश्चन पास हो जाता है मितांशी आपको। कानपुर। यस, कानपुर आप करीब हैं। कानपुर में कहाँ अगर आप बता दें तो और बेहतर होगा। दे दो। I'm sorry, I just know कानपुर। बट कानपुर इज द राइट आंसर। कानपुर देहात बेसिकली पुखरायान या पुखरयान आप उस जगह को कहते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकते हैं। कानपुर देहात में आता है वो, वहाँ पर ये दर्दनाक हादसा हुआ था। सो एक बार जोरदार तालियां, बिकॉज
मार्क्स में अब मितांशी ने अपना खाता खोल लिया है एंड अगला क्वेश्चन मितांशी आपसे ही है. You ready for it? CBSE has recently reintroduced Class 10 board examination. Name the Union HRD minister who has officially announced this. Union HRD Minister. Yes. It's Prakash Javadekar. Very good. Prakash Javadekar is the right answer, Mitanshi. So पहले राउंड का पहला हिस्सा, पहला भाग खत्म हो चुका है. इस राउंड में करंट अफेयर्स से जुड़े तमाम सवाल आपने भी सुने और उसमें क्या कुछ आंसर था स्टूडेंट्स का वो आपने भी देख लिया. अब पहले राउंड का दूसरा हिस्सा हम उसकी ओर बढ़ेंगे. उसमें क्या कुछ होना है ये जानते हैं निहारिका से. पहले राउंड के दूसरे हिस्से में you will be shown a logo and you will have to identify that logo. In case you are not able to identify the logo, question will pass to a next contestant and next. In this way, the round will progress. आपने हमेशा सुना है लेडीज फर्स्ट, लेकिन नारी शक्ति की ताकत आपको देखनी है तो आज आप फाइंडिंग कलाम के फिनाले में देख सकते हैं, जहां फाइनलिस्ट में हमारे साथ एक महाशय हैं और 3 देवियां विराजमान हैं. तो इसी वजह से हम जो पहला सवाल पूछने वाले हैं वो तेजस आपसे ही पूछने वाले हैं. हम जो लोगो आपको दिखाने जा रहे हैं, आइए देखते हैं कौन सा लोगो है. यहाँ Am I not obstructing your view? तेजस, आपको ये लोगो पहचानना है. आपका टाइम शुरू है. Sir, ISRO. Yes, ISRO is the right answer. तेजस, इसके बारे में आपने पढ़ा है? आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? Indian Space Research Organization. वेरी गुड. और कुछ इसके बारे में? और कुछ, हाँ, it's related with कलाम जी. वेरी गुड. तो तेजस ने अपना लोगो पहचान लिया और सही जवाब दे दिया है. और अब सौम्या की बारी है. सौम्या, आप रेडी हैं? Yes, sir. सौम्या, आपका लोगो सामने आ रहा है, आपको पहचानना है. Bank of Baroda. वेरी गुड. सौम्या, डीमोनेटाइजेशन के बाद बैंक के चक्कर तमाम लोग लगा रहे हैं. क्या इस वजह से इस लोगो को आपने आसानी से पहचान लिया? Yes, sir. उससे पहले नहीं जानते थे? पहले भी जानते थे. तो ये देखिए, विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन का एक और फायदा क्या हुआ है कि अब लोगों को बैंक्स के बारे में पता ज्यादा लग चुका है. खैर, आगे बढ़ते हैं. और सीमा, आप रेडी हैं? सीमा को कौन से लोगों पर परखा जाना है, आइए देखते हैं. सीमा, आपका टाइम अभी भी चल रहा है. ये लोगो आप पहचान सकते हैं? टाइम्स अप. यानी अब ये क्वेश्चन पास हो जाता है मितांशी को. मितांशी, आपको यही लोगो पहचानना है, लेकिन आपको टाइम कम मिलेगा. आपका समय शुरू होता है अब. इंडिया की जर्सी पे लोगो होता है, इट्स BCCI. वेरी गुड. बीसीसीआई का फुल फॉर्म भी आप बता सकते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया. श्योर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल. नहीं, इसके मार्क्स नहीं है. ये मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछा. आई एम सॉरी, एक्चुअली आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है? little bit I watch a bit of it. I'm a great fan of Dhoni and Tendulkar. You know, they play very classy shots actually. So क्रिकेट में एक और चीज कही जाती है मितांशी कि मौके पर चौका मारना आपको आना चाहिए. और मितांशी, आपने एग्जैक्टली वही किया है. आपके पास मौका था बोनस पॉइंट गेन करने का और आपने वो मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया है. जोरदार तालियां मितांशी के लिए. पहले राउंड के दूसरे पार्ट में अब जो फाइनल लोगो आने वाला है उस लोगो को पहचानना है मितांशी को. मितांशी, आप रेडी हैं? कैन वी हैव लोगो प्लीज? BSNL. वेरी गुड. कनेक्टिंग पीपल. मितांशी, आपने बहुत तैयारी की है ऐसा लग रहा है. करंट अफेयर्स में आपने बहुत मेहनत की है. ये लोगोस पहले से आप पहचानते थे? Sir, I've been reading newspapers since I was in the 7th standard. So I think that helps. अभी तो सिर्फ रिवीजन हुआ था and otherwise वो पीछे से चला आ रहा है. ओके. लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम भी निहारिका से कनेक्ट होते हैं और जानते हैं कि पहले राउंड के बाद आखिर स्कोर क्या है. निहारिका, आइए देखते हैं स्कोर शीट की ओर. सो राउंड 1 के खत्म होने के बाद ये है स्कोर कार्ड. तेजस 10 मार्क्स, सौम्या राजस्थान से उनको भी 10 मार्क्स मिले. सीमा का खाता खुलना बाकी है, लेकिन सीमा अभी बहुत मौके आने बाकी हैं. और अब मितांशी हरियाणा से लीड कर रही हैं 36 नंबर के साथ.
जोरदार तालियां हमारे फाइनलिस्ट के लिए। पहले राउंड के बाद ये स्कोर कार्ड की कहानी है। तो राउंड 1 खत्म हो चुका है और हरियाणा की जोड़ी मितांशी राउंड 1 में लीड कर रही है, लेकिन राउंड 2 में बाकी पार्टिसिपेंट्स के पास मौका है कि वो मितांशी को पीछे कर सकते हैं या खुद आगे आ सकते हैं। लेकिन राउंड 2 दरअसल है क्या, यही जानते हैं निहारिका से। Round 2 is going to be an audio round. Voice will be played here through our systems. You'll have to identify the voice. Okay? If he or she is unable to answer, a clue will be given. No marks will be deducted for this clue. A contestant will gain 5 points if he or she identifies the personality correctly. Questions on identification of personality cannot be passed. But if a contestant, even if he is not able to identify the voice, 2 more questions about that personality will be asked from a contestant. These questions can be passed to next contestant. Each of these questions will carry 10 marks and 15-second time will be given for each direct question and 5-second times for each past question. तो एकाग्रता बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर आप अपने सपने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कितने एकाग्र हैं हमारे ये फाइनलिस्ट अभी पता लगेगा। तेजस, हम आपसे शुरू करने जा रहे हैं, आप रेडी हैं? Yes. तेजस के लिए कौन सी ऑडियो क्लिप है, आइए सुनते हैं। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. Can I go for a clue? यस, वो स्पिरिचुअल लीडर हैं, ऑथर थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। So if I'm right, it's Swami Vivekananda. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो अब स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ा जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो सवाल है, इन 1893 स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड अ स्पीच इन अमेरिका। द वेरी फर्स्ट लाइन of this speech received a 2-minute standing ovation. What was the famous line? My brothers and sisters in America. Yes. Great! आपने ये स्पीच पहले सुनी है तेजस? कितने बार, यहाँ आने के पहले या उससे पहले से आप सुनते आए हैं? Just the previous night. Oh, आप बहुत लकी हैं। हाँ. हम सभी भारतीयों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन, और ना सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए, आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए स्वामी विवेकानंद जी एक बड़ी इंस्पिरेशन है। और जब उन्होंने ये स्पीच दी थी उसके बाद हिंदुस्तान का कितना नाम हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा है। बहरहाल अगला सवाल स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से ही जुड़ा, तेजस आपके लिए है। हाउ इज हिज बर्थडे ऑन 12th January observed in India? World Youth, National Youth Day. Yes. Congratulations तेजस, आपने ऑडियो क्लिप को भी सही पहचाना और उससे जुड़े दोनों सवाल के जवाब भी आपने दे दिए हैं। और अब अगली बारी है सौम्या की। सौम्या, आप रेडी हैं? yes, sir. ओके, तो आइए देखते हैं और सुनते हैं कि सौम्या को कौन सा क्लू मिलता है। सौम्या, आपका क्लू। एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है, मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। सौम्या, Clue. क्लू? Yeah. इन 1919 वो इंडिया वापस आए थे, वो पढ़ाई करने In के। 1919 यस, मोहनदास करमचंद गांधी। यस, मैं क्लू पूरा भी नहीं दे पाया था और सौम्या आपने सही पहचान लिया, मोहनदास करमचंद गांधी। और राष्ट्रपिता से जुड़ा जो सवाल सौम्या आपके लिए आने वाला है। गांधी जी's birthday 2nd October is Gandhi Jayanti in India. How is it known worldwide?
2 अक्टूबर जो कि गांधी जी की जन्म तिथि है, हिंदुस्तान में गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है। दुनिया में इसे किस दिन के नाम से जाना जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सोनिया, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? चलिए हम जल्द से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, इन विच लैंग्वेज गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ वॉज ओरिजिनली रिटन? कौन सी भाषा में गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ लिखी गई थी सबसे पहले? गुजराती। यस, गुजराती इज द राइट आंसर। सौम्या, आपने गुजराती गेस किया था या आपको सच में पता था कि गुजराती में ही लिखी गई थी? आई वाज श्योर अबाउट 60%। 60%। ये 40% तुक्का था लेकिन तुक्का सही जगह पर जाकर लगा है और इस वजह से आपको ये मार्क्स मिल गए हैं। जोरदार तालियां सौम्या के लिए भी। सो कंपटीशन टफ होता जा रहा है और अब सीमा, आपके पास मौका है मौके पर चौका लगाने का। सो हम वो ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं जो सीमा के लिए। सीमा, ध्यान से सुनिएगा। शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। सीमा, ये फ्रीडम फाइटर थे जिनकी डेथ अभी भी एक मिस्ट्री है और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से जांच की बात कही जा रही है। टाइम्स अप। वैसे इसके मार्क्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारे पार्टिसिपेंट्स को मालूम है ये किसकी आवाज़ थी? कौन आंसर करना चाहेगा? यस, मितांशी। सुभाष चंद्र बोस। यस, ही इज सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कोई बात नहीं सीमा, आप भले उन्हें नहीं पहचान पाई हो, उनकी आवाज़ नहीं पहचान पाई हो, लेकिन उनसे जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके जवाब देकर आप पॉइंट ज़रूर गेन कर सकती हैं। आप तैयार हैं उन सवालों के लिए? सीमा, आपके लिए पहला सवाल है, टू कीप पीपल इन्फॉर्म्ड एंड इंस्पायर्ड फॉर फ्रीडम स्ट्रगल ही स्टार्टेड हिज ओन न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। नेम द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय हिम। हिंदुस्तान की आवाम को आज़ादी के प्रति हमेशा सूचित करने के लिए, अलग जगाए रखने के लिए उन्होंने एक पेपर पब्लिकेशन शुरू किया था। आपको उस पेपर का नाम बताना है। टाइम्स अप। इसका ये मतलब होता है कि ये सवाल अब मितांशी को पास हो जाता है। मितांशी, आपके पास जवाब है? I'm not pretty sure, but आज़ाद हिंद is my आज़ाद is the wrong answer, मितांशी। तेजस, आपके पास मौका है, अगर आप उस अखबार का सही नाम बताते हैं बोनस पॉइंट्स मिल सकते हैं। पास। सौम्या? नो आइडिया। नो आइडिया। स्वराज इज द राइट आंसर। किसे याद था और वो उस वक्त दिमाग में नहीं आया? आपके सारे सेंसेस अभी यही होने चाहिए, तभी आपको सही आंसर तुरंत आएगा, बिकॉज वो आपको मालूम है बट आप बता नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। एनीवेज सीमा, अगला सवाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा हुआ आपके लिए। एन आर्म्ड फोर्स वॉज फॉर्म्ड बाय इंडियन नेशनलिस्ट इन 1942 in Southeast Asia during World War II. Its aim was to secure Indian independence from British rule. This army was rebuilt under the leadership of Subhash Chandra Bose. Name this army. Sorry, I don't know. You want to pass this question? Yes. Okay. Mitanshi. INA आज़ाद हिंद फौज। INA is the right answer. आज़ाद हिंद फौज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। यानी मितांशी, एक बार फिर से आपको मौका मिला और आपने मौके पर चौका ज़रूर लगा दिया है और एक बार फिर से बोनस पॉइंट आपके खाते में आ चुका है और अब नंबर भी आपका ही आ चुका है। मितांशी, आप रेडी हैं अपने ऑडियो क्लिप के लिए? हम आइए सुनते हैं कि कौन सा ऑडियो क्लिप है जिसकी कसौटी पर मितांशी को अब परखा जाना है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes
when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Long years ago, आप आंसर दे सकते हैं? इट्स जवाहरलाल नेहरू. वेरी गुड. और ये स्पीच जो है इसके बारे में आपको मालूम है ये स्पीच उन्होंने कब डिलीवर की थी? सर इट्स ऑन द मिडनाइट ऑफ 14th एक्चुअली, बट वी कैन काउंट इट एज 15th. तो मिडनाइट पे इट वाज डिलीवर्ड. ओके. एंड किस चीज से जुड़ी है सबसे बड़ी चीज? वी वर फ्रीड एट दैट टाइम एंड ही गिव द इंडिपेंडेंस स्पीच, फर्स्ट स्पीच आफ्टर इंडिपेंडेंस. वेरी द गुड. पीपल ऑफ इंडिया. मितांशी, अगला जो सवाल है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़ा हुआ, आप उसके लिए तैयार हैं? यस. Okay. Nehru was a writer too. He also wrote his biography. What is it called? मितांशी, नहीं सुना इसके बारे में? I have heard, but it's not clicking actually. कोई बात नहीं, आपका जो सवाल है उसका सही जवाब आपने नहीं दिया, यानी वो सवाल अब पास हो जाता है तेजस को. Sorry, if I'm right, it's Discovery of India. ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी थी, लेकिन वो ऑटोबायोग्राफी नहीं थी. यानी अब ये क्वेश्चन आपके पास आता है सौम्या. पिता का पत्र पुत्री के नाम. He wrote it for Indira Gandhi. Like it was his biography, but the name was. It is the wrong answer. Seema, you wanna try? I just know the name of one of his book. So if it is that, Time's up. just Towards freedom is the right answer. मितांशी, अगला सवाल आपसे. Name the civilian honor conferred to Nehru, which is given in recognition of exceptional service to the nation. Exceptional service to the nation. राष्ट्र के लिए कुछ अलग, कुछ हित में करने के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है. भारत रत्न. Yes, भारत रत्न is the right answer. तो 2 राउंड खत्म हो चुके हैं, लेकिन 2 राउंड की कसौटियों पर परखा जाना अभी भी बाकी है. लेकिन 2 राउंड के बाद यानी हाफ ऑफ द वे में हमारे जो फाइनलिस्ट हैं वो क्या फील करते हैं, आइए एक बार उनसे जानते हैं. तेजस, कैसा लग रहा है आप? Feeling nice, and the questions were good. Okay. So, like now we are having a feeling that we are a part of a national competition. Yes, you are, and you are the finalist. सीमा, आपसे जानना चाहूँगा. I'm at 0. Well, everyone knows that, but I'm not at all shameful of that. I'll still keep my confidence up, and I'll not lose hope. ग्रेट, इसी की ज़रूरत है सीमा, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है, आप गेन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. हम भी आगे बढ़ते हैं और आइए जानते हैं कि राउंड 2 में किस फाइनलिस्ट ने कितने मार्क्स गेन किए. आइए स्कोर बोर्ड पर एक नजर डालते हैं और निहारिका के पास चलते हैं. आइए देखते हैं आपका राउंड 2 का टैली. राउंड 2 में तेजस हैज स्कोर्ड 25 मार्क्स एंड ही इज इन टाई विद सौम्या विद 25 मार्क्स. Shima is yet to open her score, but not an issue at all. Shima is confident and definitely she'll do it. Mitanshi has scored 23 points. Can we have round 2 scores, round 1 and 2? और ओवरऑल स्कोर बोर्ड की कहानी अब आपके सामने आ चुकी है. राउंड 1 और राउंड 2 के बाद जो लीड कर रही हैं वो है मितांशी 59 मार्क्स यानी 59 नंबरों के साथ. तेजस और सौम्या दोनों में टाई है 35 मार्क्स के साथ. और अभी भी सीमा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है. अभी स्कोर बोर्ड में नंबर्स नहीं है, लेकिन वो जल्द आ जाएंगे. ये कॉन्फिडेंस सीमा का है. तो जोरदार तालियां हमारे फाइनलिस्ट के लिए. तो 2 राउंड की कहानी आपने देख ली है, स्कोर बोर्ड आपने देख लिया. तो हमेशा कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है. और जब आप फाइंडिंग कलाम के फाइनल्स में हो, इसका ये मतलब हो जाता है कि आप सभी विनर्स हैं. और हमारे फाइनलिस्ट जो यहाँ पहुंचे हुए हैं वो अपने आप में विनर हैं और हर कोई आत्मविश्वास से लबरेज भी है. लेकिन अब बारी आ चुकी है राउंड 3 की. तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर राउंड 3 में होना क्या कुछ है और रूल्स क्या कुछ कहानी कहते हैं. आइए चलते हैं निहारिका के पास. Rules for round 3. It's a time-based round. Every contestant will be asked 10 questions and they have to answer within 90 seconds. If you do not know answer of any question, it's better you pass to another question. Here, question cannot be passed to another contestant. Okay? Each question will carry 5 marks. And in case a question is incomplete and your time finishes, you can still complete your question and answer that. तो दुनिया फटाफट आगे बढ़ रही है, हम भी आगे बढ़ते हैं. और सबसे पहले तेजस,
आपसे सवाल पूछे जाने हैं। तो रैपिड फायर राउंड के लिए आप रेडी हैं तेजस? सो हियर वी गो। जैसे ही मैं सवाल पूछना शुरू करूंगा आपका टाइम शुरू हो जाएगा। तेजस, यू रेडी? Yes. West Van is multi-course cuisine of which state? West Indies. Wrong answer. State the year in which India's capital was shifted from Kolkata to New Delhi. 1950. Wrong. What is the other pen name of Munshi Premchand? Pass. Who got the first Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? Dhyan Chand. Wrong. State the date on which Constitution of India was put into practice. Pass. Name the largest tectonic plate. Australia. Wrong. Chenab is tributary of which river? Question. Chenab is tributary of which river? Ganga. Wrong. State the number of pairs of chromosomes in humans. 43. Wrong. Where are the headquarters of SAARC located? Headquarters of SAARC. SAARC. New York. Wrong. Name the institute from which Dr. Kalam completed his aerospace engineering degree. Pass. Okay. State the date on which Constitution of India was put into practice. Thumbs up. एक बार फिर उन्हीं क्वेश्चंस की ओर हम आ रहे थे जो क्वेश्चंस आपने पास किए थे। आपने 3 क्वेश्चंस पास किए थे। मैंने सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा था लेकिन आप उसका आंसर नहीं दे पाए थे। कोई बात नहीं, हम अगले पार्टिसिपेंट की ओर चलते हैं जो कि हैं सौम्या। सौम्या, आप अपने रैपिड फायर राउंड के लिए रेडी हैं? एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेडिशनल असमीज ड्रेस इज नोन एज? Pass. Name the last Governor General of India. Lord Mountbatten. Wrong. On which Indian state is novel God of Small Things is based at? Pass. Who was first recipient of Dronacharya Award in cricket? Who got the first Dronacharya Award in Pass. cricket? Pass. Mention the number of fundamental duties mentioned in the Constitution. Pass. At which place the Great Victoria Desert is located in? Australia. Right. India state which shares boundaries with Sikkim. Which? Indian state which shares boundary with Sikkim. Pass. Name the blood group that does not contain any antibody. O. Blood group O. Wrong. What is the full form of NATO? NATO. National. NATO. NATO. Pass. Name the autobiography of Dr. Kalam. Wings of Fire. Right. Okay. The traditional Assamese dress is known as? Pass. On which Indian state is novel God of Small Things is based at? Andhra Pradesh. Wrong. Who got first Dronacharya Award in cricket? Kapil Dev. Wrong. तो आइए आगे बढ़ते हैं और सीमा के पास चलते हैं। सीमा, आप रेडी हैं? आपके पास अब मार्क्स गेन करने के पूरे मौके हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स भी आप गेन कर सकती हैं अपने जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मुकाबले। आप रेडी हैं सीमा? आपका भी समय तब शुरू होगा जब मैं सवाल पढ़ूंगा। पहला सवाल, नेम द स्टेट विच इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। Kerala. Yes. Name the Governor General accredited for abolition of sati and reducing the female infanticide. Ram Gopalacharya. Wrong. Who wrote where ignorance is bliss is folly to be wise? Pass. National Sports Day of India is celebrated on? Pass. Mention the year in which the first Indian general election was held. 1962. Wrong. Name the largest gulf in the world. Pass. Name the longest beach in India. Pass. Goiter is caused by deficiency of which element? Vitamin. No. Iron. Wrong. Name the place where headquarters of IMF located. US. Wrong. Who is known as Missile Man of India? Abdul Kalam. Okay.
Who wrote Where ignorance is bliss is folly to be wise? Pass. National Sports Day of India is celebrated on? Time's up. But you played well. सीमा, मार्क्स चलिए अब जब होंगे तो अब आपने गेन कर लिया है मार्क्स, सो बी हैप्पी। राउंड 3 में आप फाइनलिस्ट मितांशी बची। मितांशी, आप रेडी हैं? रेडी। ऑल द वेरी बेस्ट मितांशी। और अगला सवाल आपसे होगा जो आपके लिए पहला सवाल है और वहां से टाइम शुरू हो जाएगा। ओके, आई एम रेडी। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नेम द स्टेट टू विच वेजिटेरियन फूड ढोकला बिलोंग्स टू? गुजरात। इन विच ईयर द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने स्टार्टेड? 1853। Which is the world's longest novel? World's longest novel. Pass. Name the country where Olympics 2020 will be hosted. Tokyo, Japan. To whom will the president address his or her resignation? The CJI, Chief Justice of India. Wrong. Name the continent with maximum numbers of countries. Africa. Right. In how many seismic zones India is divided into according to earthquake zoning map? 4 zones. Right. Name the disease for which BCG is given as a vaccine for? Tuberculosis. Right. What is the full form of OPEC? Pass. Which musical instrument Dr. APJ Abdul Kalam used to play? Rudra Veena. Right. Which is the world's longest novel? Mahabharata. Wrong. What is the full form of OPEC? I'm sorry, I'll pass this. OPEC. One answer? This is the only question. I'll pass it. I don't know really. Okay. Anyone who want to answer this question? OPEC. OPEC. Yes, Soumya, आप ट्राई कर रहे हैं? Oil Petroleum Energy Commission. Oil producer. थोड़ा जोर से आप बोलिएगा। Oil Petroleum Energy Commission. ना. Is the wrong answer? Anyone? Yes? Organization of Petroleum Exporting Company. Yes is the right answer. राउंड 3 खत्म हो चुके हैं और राउंड 3 के बाद क्या स्कोर्स हैं, राउंड 3 में किसने कितना गेन किया है, सबसे पहले ये जानते हैं। निहारिका के पास चलते हैं। आइए देखते हैं स्कोर शीट को। राउंड 3 का स्कोर बहुत एनकरेजिंग नहीं रहा, लेकिन सीमा हैज ओपनड हर स्कोर। सौम्या एंड शीमा, दे हैव अ टाई इन राउंड 3 and Mitanshi was able to gain 35 marks. No problem. Tejas, now let's see, have a look on the overall scores. राउंड 3 के बाद अब मितांशी जो 94 अंक के साथ 94 मार्क्स के साथ अभी भी लीड कर रही है, जोरदार तालियां। दूसरे पायदान पर है सौम्या जिनके 45 मार्क्स है, यानी 45 नंबर के साथ वो दूसरे पायदान पर है। तेजस 35 नंबर्स के साथ तीसरे स्थान पर है और सीमा जिन्होंने अभी अभी खाता खोला है 10 नंबर के साथ चौथे पायदान पर है। जोरदार तालियां हमारे इन फाइनलिस्ट के लिए। वैसे आपको बता दें कि अभी 3 राउंड हुए हैं और अभी फाइनल राउंड है जहां पर हमारे जजेस की कसौटी पर इन तमाम फाइनलिस्ट को परखा जाना है और वहां पर ये रिजल्ट बदल भी सकते हैं। सो आप सभी रेडी हैं? लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि जो फाइनल राउंड है दरअसल वो है क्या, किस तरीके से अब इन फाइनलिस्ट को परखा जाना है। तो एक बार फिर से हम निहारिका के पास चलते हैं। निहारिका, Final round is going to be judges specific round. Our jury members will be checking you on their own parameters. They'll be asking you questions and you'll have to answer their questions. Fine. Each judge will be asking questions from 2 contestants now and you have to answer their question. You will be getting 2 minutes time to answer the question. You have to discuss, answer anything you wish. You can discuss with judges right now. So the round starts now. Over to judges. Right. Thank you, Niharika. Tejas, as you know, this is the finding of Kalam and he was the scientist, isn't it? So perhaps you would also like to become a scientist, isn't it? So perhaps most important aspect of becoming a scientist is to be more curious. So since this round is, I'm supposed to look after the confidence level, the ability to explain. So this is not a very straightforward question, okay? So it's a kind of an observation. Suppose if you go in a night sky, okay, and if you try to look at the sky, what do you think that how many number of stars that you can count? Number 1. Number 2, if you look at the sky,
you will be able to see the stars in a different color. Why do the stars have a different color of light? You can just vividly think about it and guess what could be the number. According to me, rough number will be 7,10,202. And if you have any doubt, you can confirm it, sir. Okay, fantastic, very good. Nice, I like your confidence. But when I ask you the question, I mean to say that because every human being, we have a limitation. Yes. Whatever I can see, you can see. And it's absolutely countable number. It's not infinite. Let me tell you, number one. Okay, forget about the first part. But do you think that stars have a different color? No, the basic, rather than the color, we see the stars are sparkling, and that, if I'm right, that's due to their position apparent from that of the sun. Okay, fine. प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए स्कूलों के बारे में क्या कहा था? अबाउट स्कूल्स? यस। नरेंद्र मोदी ने इस बात पे जोर दिया था कि देवालय से पहले शौचालय होना चाहिए, इसीलिए 15 अगस्त 2014 के दिन ही उन्होंने सुलभ शौचालय की जो योजना है वो पूरे देश में लागू की थी। उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि हम देवालयों पे, हम मंदिरों पर इतना खर्च करें, लेकिन उसका फ़ायदा क्या, उसका क्या बेनिफिट है जब हमारे स्कूल्स में और जहाँ अगर जो गर्ल चाइल्ड है वो पढ़ रही है और उसके स्कूल में अगर वॉशरूम ही नहीं है, अगर शौचालय ही नहीं है, तो उस पढ़ाई का, उस विद्या का क्या मतलब। हमने अपने वेदों में, ज्ञान में पढ़ा है कि सफाई जो है, हमें सफाई पर जोर देना चाहिए और पढ़ने से पहले भी हमें ध्यान रखना चाहिए, खाने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास सफाई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने स्कूलों के बारे में क्या कहा था? कि हर एक विद्यालय में एक शौचालय होना चाहिए। ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि 1 साल के अंदर जो 4.5 लाख स्कूल हैं उसमें शौचालय हो जाने चाहिए। डॉक्टर अरविंद सी राणा डे, सर आप अब क्वेश्चन करेंगे सीमा को। सीमा, अगेन माय सेम लाइन्स विथ यू. It's only a kind of a discussion. Don't ever think that I am going to precisely test your knowledge. It's if you logically, I mean, I'm more concerned for your observing abilities and thinking abilities, right? I'm quite sure you must be looking at the moon, right? As and when you get the chance, at least on the full moon night, whenever you look at the moon. Number one, do you believe that we see only one side of the moon? If yes, why? दूसरा सवाल है, whenever the tide come, है ना, धरती पे जब ज्वार भाटा आता है, if you look at this globe of the earth, the tide comes in the 2 different location. एक जो हिस्सा चंद्रमा की तरफ है, उधर भी टाइड्स आते हुए नजर आता है, and which is exactly opposite, उधर भी टाइड आते हुए नजर आता है, और आता भी है, which is the fact. So what is the reason that tide occurs on the both the side? I would like to answer for the moon question. Okay. That I don't know much in depth, but till my 10th standard knowledge, I would like to tell that I think that we see just one side of the moon, because we are only on, we are just on one part of the hemisphere. It might be looking different on other part. So as like a short observation, that as our car keeps moving, I see different shape, means different textures of the sun or moon. So I feel that we see only one part, and that's it. Your answer is correct. We see only one side of the moon, but which is true everywhere. Whether we are in India, we are in America, everywhere we see only one side of the moon. Why we can't see the other side of the moon is because of the tidal force. Okay. Because of that tidal force, rotation and the revolution period of the moon is same. Okay. The time taken by the moon to complete the one rotation around its axis and the time taken by the moon around the earth is same. Okay. So that's why you always see the one side of the moon. Okay. And the second question, I will just answer it because the time is there. Why just repeat the question, I'll just try answer. Why do we get the tides on the both sides? The earth which is facing toward the moon and the earth which is not facing toward the moon. Okay, no idea. It's again because of the gravitational force.
the water which is towards the moon gets attracted towards the moon. Because of that, the high tide comes. But why on the second? Because moon, attract earth, water is one, and as a mass of the earth, it also gets shifted towards the moon. And that means if the mass is being pulled, water is a liquid which again going to the opposite side. So both the side you always see the tides. So thank you for increasing Welcome. my knowledge. Given a chance, I would like to be your student. I am enjoying so much learning from you at the moment. Thank you. डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के पास हम जाएंगे। सर, आपका सवाल मितांशी के लिए। मितांशी के लिए है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2019 को महात्मा गांधी को हमको 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर बेस्ट ट्रिब्यूट देना है, श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। तो कैसे होगा श्रद्धांजलि, किस बात के लिए? सर, प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से साफ सफाई पे, क्लीनलीनेस पे, स्वच्छ भारत पे और गांधी जी के जो आइडियल्स थे उनमें काफ़ी यकीन रहा है और वो हमें भी यकीन दिलाते रहे हैं कि हमें भी उन्हें फॉलो करना चाहिए। जो गांधी जी ने कहा वो हमें उसके पीछे चलना चाहिए। तो सर, आज ये काम करने के लिए आई डोंट थिंक कि कोई बाहर से आने वाला है, ये सब हमें ही करना है। तो आई थिंक हमारी जो यंगर जनरेशन है, वी हैव टू राइज, वी हैव टू डू इट। सर, मैं अगले साल मेडिकल लेने का प्लान कर रही हूँ, बट उसके बाद आई एम टू बी अ सिविल सर्वेंट। और जब आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं, आपको पूरे शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करना चाहूँगी, अवेयरनेस के साथ साथ आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन द क्लीनिंग। आपको नहीं करना है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि देश से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। तो क्या काम होगा वो क्या काम होगा श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हम? उन्होंने कहा सर कि हमें भारत में सफाई लानी है, तो हर एक के हाथ में नहीं, हर एक के हाथ में झाड़ू। उन्होंने कहा था कि जब ओपन डिफिकेशन, खुले रूप में शौच करने की प्रथा समाप्त हो जाएगी तो हम गांधी को 185 वर्ष पर सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। तो ओपन डिफिकेशन खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो राइट आंसर था कि ओपन डिफिकेशन समाप्त करने के लिए कहा था, ताकि गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि 150वीं उनके बर्थ एनिवर्सरी पर दे सकें हम। ठीक है, यस सर। चलिए कोई बात नहीं, आंसर नज़दीक जा रहा था, थोड़ा सा छूट रहा था वो। कोई बात नहीं सर, आई गॉट टू लर्न सो मच। आपने मुझे बताया, इससे नॉलेज इंक्रीज हुई। आई ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द ये डेफिकेशन फ्री का मैं पार्ट बनना चाहूँगी सर। आई वांट टू टेक पार्ट इन इट एक्टिवली। थैंक यू सर। सो फाइंडिंग कलाम ग्रैंड फिनाले का फाइनल राउंड यानी जजेस राउंड भी खत्म हो चुका है, लेकिन जजेस राउंड में किसे कितने मार्क्स मिले हैं ये जानना बाकी है। तो आइए बिना देरी किए मार्क्स जानते हैं कि आखिर फाइनल राउंड में किसे कितने मार्क्स मिल चुके हैं। चलते हैं निहारिका के पास। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड पे फोर्थ राउंड के स्कोर्स क्या हैं। फोर्थ राउंड में शिवा has scored 30 marks, Tejas 33, Soumya 37 and Mitanshi is on 36 points. ये फाइनल राउंड्स के स्कोर है यानी जजेस राउंड्स के स्कोर, लेकिन ये फाइनल स्कोर्स नहीं है। फाइनल स्कोर कार्ड क्या कह रहा है, आइए जानते हैं कौन बना है विनर। लेकिन स्टार्ट करते हैं चौथे पायदान से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चौथे पायदान पर कौन है। सीमा फ्रॉम गुजरात। सीमा, आपने बहुत अच्छा खेला, सूझे, बट ये स्माइल बरकरार रखिए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तेजस फ्रॉम केरला। तेजस, वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड। 68 अंक आपके हैं, 68 मार्क्स के साथ आप तीसरे पायदान पर हैं। फर्स्ट रनर अप सौम्या फ्रॉम राजस्थान, 82 यानी 82 मार्क्स के साथ। एंड द विनर इज मितांशी फ्रॉम हरियाणा, 130 अंकों के साथ। मितांशी, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। This is a great moment. I don't know how to describe my feelings, but I'll be very short, precise, and I'll try to be as frank as possible. Before I came in, there were butterflies in my stomach. I was like, hey, what's gonna happen? We have competition from all over India, and these guys are not less talented. These are the people who have been selected after rigorous rounds. So I was a little bit, nervous. Actually, I was like, okay, what's gonna happen? But I would first of all say congratulations to my co-participants. They have also done a very well, very well.
And without the competition, there can't be a winner. So thank you everyone. I made many friends on the way, and really right now the only emotion that's inside me is thankfulness. Thank you everyone who's been in your life. Thank you my parents. Thank you my teachers. Thank you all my friends, everyone here, and a special thanks to Extra Marks and News Nation who've given me this opportunity. This means a lot to me. तो साल भर की मेहनत, हिंदुस्तान में तमाम शहरों को खंगालने के बाद हम 4 हीरे आपके पास लेकर आए थे, जिन्हें फाइनल में तमाम कसौटियों पर फिर से परखा गया है। और आप ये भी जानते हैं कि हीरे को जितना आप परखने की कोशिश करेंगे, उसकी चमक आपको उतनी ही ज्यादा नजर आएगी। और आज भी कुछ वैसा ही हुआ है। एंड फाइनली फाइंडिंग कलाम के ग्रैंड फिनाले में हमें विनर मिल चुकी हैं, और एक ऐसे विनर जिन्होंने 10 लाख की स्कॉलरशिप जीती है। इसके अलावा एक कॉन्फिडेंस जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि यही हिंदुस्तानियों की खासियत होती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मितांशी पंत का। मितांशी प्लीज आप आइए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूनम मैम से, सीएमओ ऑफ एक्स्ट्रा मार्क्स, कि आप मितांशी को ये चेक जो कि स्कॉलरशिप का है 10 लाख रुपए का, वो आप उन्हें हैंड ओवर करें। मितांशी, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये चेक लेकर आप मेरे करीब आ जाइए। मुझे मालूम है ये आप शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे मितांशी, प्लीज कम हियर। मितांशी एक चीज बताइए, इतनी बड़ी प्राइज मनी, इतना बड़ा स्कॉलरशिप अमाउंट, क्या करेंगे आप इसके साथ? I'll finance my studies all over. पूरी स्टडीज के लिए ये। पूरी स्टडीज के लिए क्या करना चाहती हैं आप? I'll take a medical next year, 2019 AIMS examination. Then I'll be going to AIMS. Then I'll study 5 year का course. After that I'll be appearing for UPSC, Civil Services, and finally a Deputy Commissioner. यानी सब कुछ डिसाइडेड है। ये किसने डिसाइड किया, मम्मी पापा ने या आपने खुद? No, my mom dad was like, you can be anything you want to. We are all behind you with all our support. It was my teachers, some magazines, newspapers. I've met some IAS officers. I was very, inspired. And I've always been a person who's loved challenges. Matlab, you throw me a challenge and I'll use all my might to just cross it. If you keep me just like this, ऐसे ही छोड़ दोगे, don't give me anything, I get bored. I need challenges in my life to just grow. So I think that's the thing. Okay, एक चैलेंज आपके लिए, मम्मी और पापा किसने ज्यादा सपोर्ट किया? देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है, बट चैलेंज में आंसर देना होगा। Okay. I'll be very diplomatic. My mom has been a very good emotional support. My dad has been a practical support. My dad मुझे practical चीजें बताते हैं. Mom is like emotionally she's preparing mentally. Dad is like okay practical things. ये ऐसे. I can't compare the two. They two are poles apart. Yet they just come together and help me become what I am. मितांशी, कुछ मम्मी पापा के लिए कहना चाहेंगे? I think ऐसा प्लेटफॉर्म रोज तो नहीं मिलता है। वैसे तो सबको ही पता है मॉम डैड कि हम आपको वी लव यू, सो आई डोंट हैव एनीथिंग। मॉम एंड डैड, इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। 14 years आई नेवर फेल्ट कि आज तक आपने कुछ छोड़ा मेरे लिए। इवन इफ इट्स मिडनाइट, अगर रात के 12 बजे ना से आई वांट अ पिज़्ज़ा, माय डैड विल रन एंड गेट इट फॉर मी। माय मॉम इज ऑलवेज बीन लाइक शी इज बीन फुलफिलिंग ऑल माय डिमांड्स, शी इज बीन जस्ट विद मी। सो आई गेस नथिंग एल्स आई वुड से एंड लव यू। मितांशी, मैं चाहता हूं कि आप अभी अकेले ना रहे। मम्मी पापा ने इतना साथ दिया तो आप उन्हें यहाँ पर बुलाएं अपने पास। ये मोमेंट इमोशनल है, आई नो। ये जो खुशी के आंसू है ये बहुत प्रीशियस होते हैं। प्लीज सर आप आइए। मितांशी, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मैम आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। प्लीज आप इधर आइए, आप असली विनर हैं आज। सर पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्लीज आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। मितांशी ने जो कुछ कहा सबने सुना, आप भी कुछ कहना चाहेंगे मितांशी के लिए? मितांशी के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई जो वो बनना चाहती है, एक्स्ट्रा मार्क्स ने हमारे को बहुत कुछ कर दिया है। तो आगे अब उसके पंख जहाँ उड़ना चाहे, वो जहाँ पर हमारे को ले जाना चाहे, हम उसके पीछे चलेंगे। खुला आसमान है मैम। माँ की जो झप्पी होती है ना, वो बच्चा हमेशा पसंद करता है। और अगर माँ एक प्यारी सी पुचकारी जो कहते हैं वो दे दे तो ऐसा लगता है उससे बड़ी जीत कुछ नहीं होती है। लाइक मितांशी मैम, आप चाहे तो अभी झप्पी दे सकते हैं मितांशी का। सो अब हमारे जजेस यहाँ पर हैं, विनर्स यहाँ पर हैं। मैं चाहूँगा निहारिका मैम कि ट्रॉफी हम हैंड ओवर करें। जजेस से रिक्वेस्ट करूँगा कि विनर यानी मितांशी पंत को
ये ट्रॉफी हैंड ओवर करें और सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप सबकी भी विक्ट्री है। ओके, 3 cheers, हिप 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 हिप। आप भी आइए। सो हिंदुस्तान में तमाम शहरों में जाने के बाद वहां से इन बच्चों को सेलेक्ट करके लाया गया था और एक तगड़ा कंपटीशन था। लेकिन इस दंगल में आज जो दिमागी कसरत थी उसमें मैदान मारा है आज मितांशी पंत ने और विनर बन चुके हैं, जिन्हें 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल रही है, साथ ही ये यादगार ट्रॉफी।